take the lead. Well, myself, Dr. Ritu Mahajan. I'm working. I have a company, Rebiop Agrotech Private Limited. I'm the founder of the company. The co-founder, Mr. Aditya Kumar Sood. He's a technical officer, previous senior technical officer, joint director, Department of Industries and Commerce. I'm working right now incubated at TBI Iser Mohali and working with Satyendra Singh sir. I'm basically working on the nano biofungicides. My basic purpose is to replace the chemical pesticide problem of the Punjab, not only of Punjab, of our country, and at the global level. Recently, we've started with the wheat which is in progress with one of the company with Brazil. And here I'm working on the rice blast. That is the major fungal problem of Punjab here. And then I'll be taking up with the millets and other cereals, and then come to tomato, brinjal, and the other fungal problems of the vegetables and the fruits. So this is what is my plan. So this is what we are doing. Thank you. That's a wonderful, wonderful startup, Dr. Ritu. Thanks for sharing. Thank you so much. Basically, it's really become quite tedious, rather, I can say, quite challenging to take up the technical startup. I'm not saying that a startup journey is always very tough, but the technical, when we are taking up a technical, I basically, a carbohydrate scientist, came into a nanotechnology. I wanted to, whatever I learned into during my research and my teaching and experience and all that. So I wanted to, like, what if we people do not come up, take the lead, who else will? So basically, whatever are the problems in the agriculture field, we need to take it up. So this is how I decided to take the technical startup. Thank you. Absolutely, absolutely. Hi. So Kamal this side. So I'm from Data Blair Srijan Technologies Private Limited. I'm the managing director here. So it's a small startup. We started it in 3 years back, working in the field of data analytics for large enterprises. And we have created an AI bot. Imagine your co-pilot, the Microsoft Copilot. Imagine that Copilot on real-time data of any industry out there. Right. So we have created that system. We are calling it decision support system. So that's what our product is. So now we are in talk with Maruti Suzuki, Mitash Group, Toshiba, and Acme Solars. That's it from my side. Thank you. Thank you. Thank you for sharing. Yeah, good evening. Good evening, sir. Good evening, Hirdesh. How are you? I'm doing good. Very good evening, Hirdesh. Good evening, brother. Good evening, Hirdesh, and welcome. Thank you. So any more startups who want to share about what they do? Shruti? Luck? So Hirdesh, we were just giving the platform to startups to share about what they are doing presently. Right. Once mic. All right, let's wait for another 1 minute. Rimpi, would you want to wait or you want to go ahead? I can wait if you want. And can you give me the screen sharing right so that I can write and while I speak? Sure, we'll do that.
Keshav, you can give the screen sharing. Already given. Can you see the screen? Yes, we can see a graph. Yeah. Yeah, so we can formally introduce sir also before the session. So generally purpose of these sessions is to get Q&A, and after the session we'll have Q&A and all, so that people can share what they want and they have any queries and all, anything which they wish to answer. So over to you to introduce sir formally. Thank you. Hello. Yeah, Rimpi, you can introduce Yeah. the introduction. Yeah. Yeah, I'm audible. Yeah. So I'm honored to welcome Hirdesh Madan ji at our platform. He's a visionary leader known for growth and strategic innovation. Madan ji is a serial entrepreneur, co-founded Hit Bullseye, India's primer test prep service, and the Bullseye cluster to coaching centers, creating new MBA coaching standard in North India. As Mindtree School trustee, Madanji shaped great educations with his strategic insights. He leads industry organizations as CIIHB State Council member and TIE Punjab and Chandigarh president. Hidesh Madanji is an entrepreneurial and educational legend due to his varied knowledge, imaginative leadership, and continuous devotion to growth and innovativeness. We are honored to have you here, sir, to share your insights on cultivating success, growth strategies for startup. Yes, sir, we are good to start. Okay. Thank you. Thank you, Sahil, for inviting me here and giving the opportunity to interact. It's all my pleasure, sir. Thank you. There's a meter coming. Yeah. Is my voice echoing? Yes, unfortunately. Just give me a second. Okay, so I think now it's good. So, the topic given to me is growth strategies. And so I'll say, I've seen all the kind of, I'll say, phases where we had growth challenges, where we had challenges related to growth, challenges related to multiple things. So I'll share some of my experiences which I had gone through. And the first thing is that when we talk about growth, how does growth happen? Growth happens on two accounts. One is how sorted you are from inside, how sorted is your business organization. Unless you're not sorted from inside, you cannot grow. That's the first thing. And second is, when we are sorted from inside, how do we grow? Right. So probably I'll just scribble some of the things which will help you understand better. Just a sec. Okay. So I'll say one is
The root is starts from inside and one root is starts from outside. I just explained to you that once again. When I say starts from inside means, you know what is the typical problem of a startup? That, you know, we get too much into the operations. I know so many of my friends when we started Bullseye in 1998, you know, first 3 years I was involved in active teaching. I was 6 hours inside the classroom. Day in, day out, I was teaching, right? I soon realized if I'm all the time inside the classroom, who will take care of the business, the growth, the planning, right? Because you don't have a time, because you're all currents of the day will fill your day. आप समझते हैं करंट ऑफ द डे क्या है? सुबह उठे ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे जाना है, ऐसे करना है. आपका पहले ही सारा दिन कुछ सोचने के लिए नहीं है, और जब सोचने के लिए टाइम ही नहीं है तो ग्रोथ ही नहीं होगी. अब पहली चीज तो है कि आपका टाइम फ्री कैसे हो. जब आप एज ए एंटरप्रेन्योर हो, you have to have some time for introspection, some time to think, some time to analyze. So first thing is get some time which you can spend on thinking. और वो तब होगा जब आप अंदर से सॉर्टेड होंगे. इसका मतलब क्या है कि टाइम कैसे निकलेगा. बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर द बक विल स्टॉप एट यू एवरी टाइम. कुछ भी पंगा हो जाए एंड में आपके पास ही आएगी प्रॉब्लम घूम के. आप कितनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लगाओगे. तो आपको ये देखना है कि ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो पीछे रुक सकती हैं, फर्स्ट गेट पे रुक सकती हैं, सेकंड गेट पे रुक सकती हैं. वही मेरे पास प्रॉब्लम आए जो लास्ट गेट की हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टेलीफोन कॉल मेरे फोन में रूम कमरे में लगा हुआ है तो सारी घंटी मेरे कमरे में बजेगी ना. एक बंदा आगे आ गया तो वो सिर्फ मेरे को वही कॉल देगा जो मेरे काम की है. पता लगा बंदा बेच रहा था क्रेडिट कार्ड, वो कॉल भी मैंने उठा ली. सो व्हाट वी आर डूइंग, we apply a filter through a person or whatever, blah blah blah, right. तो पहला स्टेप तो ये है, and I'll elaborate it again. सेकेंड स्टेप इज कि हम ग्रो कैसे कर सकते हैं. ग्रोथ का यहाँ पर the silver line is the growth in revenue, right. See, the challenge today is unfortunately, कल भी मैं I was a jury member of STPI awards which TAI gives. An entire day we were listening to people. Unless you talk about business, real business means money. You know, if you talk about, you know, इतने downloads हो गए, इतना ये हो गया, इतना traffic हो गया, इतना pilot हो गया, it is good. Initial phases it is good. But finally business runs on money. Business runs on sustainability. Business runs on sustainable practices. आप एक इंसान है जो उधार लेके जीता है. कितने दिन उधार लेके जी लेगा. फंडिंग इज उधार. 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उधार लेने वाले भी आएंगे, वापिस आएंगे और वो डबल पैसे भी मांगेंगे. तो सस्टेनेबिलिटी की बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी इन स्टार्टअप्स एंड दैट इज द वे यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग. If you're just thinking ki I am here, I'll just triple value, somehow take funding in the next round, something like that, and I'll exit. You should quit business right now. That's not the way the businesses work. Right? All these are the steps towards a process. But that cannot be the final objective of running a business, that I will increase valuation, quit, and somebody else will take. क्या आप बच्चा पैदा करते हो कि 3 या 6 महीने बाद जब बड़ा हो जाएगा मैं किसी को देके अगला बच्चा पैदा करूंगी. That's how the mother thinks. Mother doesn't think like this. You have to make the child full blossom, grow, self-sustaining. So running a business is like
taking care of a child. जब बच्चा छोटा होता है ना, पहले साल he needs intense care. Everything is dependent on mother. It's like you. पहले 2 साल, पहले 1 साल स्टार्टअप ऐसे ही होगा. हर चीज के लिए छोटी छोटी आपके पे डिपेंडेंट है. लेकिन जैसे हम ग्रो करते हैं, बच्चा बड़ा होता है, उसकी डिपेंडेंसी माँ बाप पे कम होती है. ऐसे ही हमें करना ऑपरेट. We have to reduce our dependency from us. We have to find ways and means that how we can reduce that dependency of a startup on a co-founder or a founder. And the second way of looking at is thinking from a outside perspective. Right? When I say outside perspective, there are standard ways of looking at it. So how do we increase revenue? So only 2 things. Either you launch new product or services, or you get into the new markets. It could be a combination of both. So you have existing product line and something new. It could be market, it could be this thing. I am doing good in Punjab. I say, okay, let me expand to Haryana. I am entering a new market. I am running one product. I say, okay, my customers are happy with my product. Let me launch a second product. Let me increase the revenue from an existing user. They are typical good strategies. But let me just more elaborate on the first point, which is from inside. So when I say from inside, remember that first golden rule is that if you want to make you independent, whatever you are doing, try to make processes and system out of it. So there are 2 words we need to understand, which is the process and system. Right? So for example, when we were 10 people, कोई छुट्टी मांगता था उसको दे देते थे, कोई ज्यादा छुट्टियां ले जाता था कम ले जाता था. और जैसे ही डेवलप एक स्टेज पे हुए, HR has to come in place. It's okay. There's a leave policy. There's a system. You can take, let us say, 2 leaves in a month. There are conditions of working. Create a system and a process, could be a policy. Once you do that, life is simple. Today my HR will not come to me कि सर इसका आज क्या करें. I say what is not written, tell me what is not being written in the policy. If that is arising question, let us write and put that in the policy back so that you do not come to me. To me, what should come is only the specific case. So what I have done is very simple. By writing just a HR process and attendance and a working hour policy, I have ensured the basic. रोज मेरे 15 मिनट खराब होते थे, 20 मिनट खराब होते थे, वो चला गया मेरे हाथ से. It's as simple as that, right? So when you are having process and system in place, usually the next step is delegation. What you are doing yourself, can you give it to someone else? But that's not easy, because if you want to give someone this delegation, so it has to be delegated to someone, right? And for that person has to be coached or mentored, right? तैयार करोगे ना पहले उसको आप. डेलीगेशन विदाउट कोचिंग, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी. दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट. और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वह आपको करना है लेट गो. ध्यान से समझना, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहली, कि जब आप कुछ डेलीगेट करना चाहते हो, किसी को आप तैयार करोगे कि जो मैं आज कर रहा हूं वो ये पर्सन कर ले,
A problem with the all of founders is that they have perfected a lot of things and they're finding robot of them. Human DNA is so complex that you cannot create replicas. Even two brothers are not same of the same parents. Forget about organizations. Right? Only robots can replicate. Human beings cannot be replicated. So आपको यहाँ पे लेट गो करना सीखना पड़ेगा. मुझे 100 आता था, अगर मेरा बंदा 80 तक भी पहुंच गया, 70 तक भी पहुंच गया, ओके, कर छोड़ दो, कर लेगा. जो सब कुछ आप ही पकड़े रहोगे तो कैसे होगा? राइट? We have only 24 hours in a day. So delegation is very important. Delegation के लिए अब आपका काम है, सबसे पहले तो आपका माइंडसेट किसी को तैयार करने का, और अकाउंटेबिलिटी मतलब कि भाई क्या वो पर्सन प्रोसेस सिस्टम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. और अकाउंटेबिलिटी के साथ एक वर्ड ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं डेटा. जब भी आप किसी टास्क को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं, वी हैव टू जनरेट डेटा अराउंड इट. अब मान लीजिए कोई पर्सन लेट आ रहा है, तो उसके अराउंड डेटा जनरेट हुआ कि 9:30 पे आना था, 10 o'clock आया. So data point is generated and you have to ensure the data point is generated. So how you can do it? Maybe putting a attendance machine, maybe a biometric. So behavior of coming late or whatever is captured and converted to a data point. जब तक आप मल्टीपल डेटा पॉइंट्स नहीं क्रिएट करेंगे, प्रोसेसेस नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक अगर आप डेलीगेट करोगे तो लोग आपको खा जाएंगे. So you need to generate steps start from process and systems. For accountability, you need to create data. The coach person, change your mindset. Here, let go means owner has to change mindset first. And then only you can delegate. Once you start delegating, then you have ample time to think of something else. So inside से शुरुआत कहां से होती है? आपके सॉर्ट आउट होने से, इंटरनल सिस्टम सॉर्ट आउट होने से, प्रोसेस के सॉर्ट. ये समझ लो कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. ऑफिस में रोज गलती होंगी. सो जब भी ये कोई गलती हो ना, सो होता क्या है, whenever there is some mistake, you know what is हमारा यूजुअल रिएक्शन क्या होता है मिस्टेक्स के साथ? चल, या सॉरी. सो अब जब भी गलती होती है ऑफिस में, तो हमारा इनिशियल रिएक्शन क्या होता है बताओ? क्या करते हैं जब गलती होती है? सबसे पहले होता है ब्लेम. किसकी वजह से? सबसे पहले तो किसने की, यू नो, हु डिड दैट मिस्टेक, पकड़ो उसको. फिर ब्लेम गेम शुरू होती है. 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 3 होते हैं. वो कहता है मेरी वजह से हुआ, तो तेरी वजह से हुई, है ना? सोल्यूशन क्या है? हमारा एम क्या होना चाहिए? अगर गलती हुई,
What should be our aim? Learning, Correct. probably learning from the mistake. Absolutely. What we learn from that mistake. And the next question is learning से अगला जो question है वो ask. Whenever a mistake happens in your office, ask this question. How can I stop this mistake to happen in future? How do I stop a same or a similar mistake to happen in future? Because people will come and go from the organizations. Remember this. If you blame a person, then mistake will happen again. उसकी अगली बार जैसे ही नया बंदा आएगा वो गलती करेगा. तो गलती रोकने का तरीका क्या है? सिस्टम और प्रोसेस. छोटा सा एग्जांपल देता हूं. एक बार क्या हुआ कि हमने रिफंड चेक इशू किया. 6-7-8 साल पुरानी बात है. उस पर 3000 लिखा था. बच्चे ने उसको क्या किया, फोर्स करके 30,000 कर दिया और वो बैंक में चला गया. बाई चांस बैंक मैनेजर को शक हुआ. ही कॉल्ड अवर अकाउंट पर्सन कि सर आपने 30,000 का चेक इशू किया है. हमने कहा नहीं किया. वो बंदा भाग गया वहां से. चेक अकाउंट्स वाले मेरे पास आए. मैंने कहा क्या सीखा हमने. मैंने कहा बड़ा सिंपल है. Immediately I said okay, let us make a stamp. On every check you make a stamp not more than 5,000, not more than 10,000, not more than 20,000, 50,000. खत्म हो गई बात. अब क्या होगा कि अगर वो चोरी करेगा भी तो 3,000 तक का है तो दो मैक्सिमम 5,000 तक की चोरी कर सकता है. 2,000 की एक्स्ट्रा कर सकता है. अब मैं इंक तो चेंज नहीं कर सकता. उसका भी सोल्यूशन है कि आप जहां अमाउंट लिख रहे हो उस पर टेप लगा दो. तो हमने क्या किया, हमने स्टैंप का प्रोसेस पकड़ लिया. नेक्स्ट डेट वाज इंप्लीमेंटेड. rather than I blame कि किसको रिफंड कर दिया, गलत बंदे के हाथ में चेक दे दिया था. all that is nonsense. Immediately we created a system so that the next time the same mistakes, please understand, remember, और सिस्टम और प्रोसेसेस ऐसे ही बनेंगे. हर गलती के ऊपर प्रोसेस की लेयर लगाओ, हर गलती के ऊपर सिस्टम की लेयर लगाओ. जैसे 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 आप सिस्टम और प्रोसेसेस की लेयर लगाते रहोगे, एक दिन आपका सिस्टम इतना परफेक्ट हो जाएगा कि वो इजी लेवल की गलती होने ही नहीं देगा. और वहीं हमें पहुंचना है. जिस दिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहां पहुंच गई तो हम प्रोसेस डिपेंडेंट हैं, पर्सन डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. और जो ऑर्गेनाइजेशन पर्सन डिपेंडेंट है वो बहुत रिस्की होती है. बंदा गया, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई. और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ड्रिवन होती है वो कभी नहीं मरती. सीईओ चेंज होता है, बॉसेस चेंज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज ए perpetuating, self-governing, self-running. Got it where I'm coming from? So गलतियां होंगी. हर गलती से तो पहला असूल कि कभी भी गलती होती है उसको डांटना नहीं है. पहले समझो कि गलती हुई क्यों. और जब गलती हुई क्यों उसको बोलो कोई बात नहीं, अगली बार से आपने ऐसा नहीं करना. हाँ, सेम गलती बंदा कर रहा है, ही शुड बी पनिश्ड. दूसरी गलती कर रहा है, पहली जिम्मेवारी आपकी. बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द बैट्समैन, नॉट द बॉलर. ठीक है. तो प्रोसेस ऐसे ही बनते हैं. मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया और हम ऐसे ही उस पर बिल्ड करते रहते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. जब आप बिल्ड करते रहते हो तो बहुत एक लेवल आएगा जहां पे आपका सब कुछ एकदम वाटर टाइट हो जाएगा. राइट. सो process and system. I hope you have understood what do I mean by process and system. Then every process and system we create accountability. जैसे मैंने अटेंडेंस के अराउंड बोला, जितना आप डेटा जनरेट कर पाओगे उतने ही सुखी हो जाओगे. डेटा पॉइंट्स कैसे जनरेट कर रहे हैं, जैसा कहीं आप एंट्री कर रहे हो, कहीं पे स्मार्टली काम कर रहे हो, प्रोसेस तो आपको लगातार फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है ना. क्लियर. और
कोचिंग और मेंटरशिप लीडर का रोल है. प्लीज अंडरस्टैंड, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप सेकंड रंग ऑफ लीडर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप नहीं करोगे, क्योंकि उन्हीं को तो डेलीगेट करना है. अगर आप ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आ रहे हो, आप ही इनसिक्योर हो, आप ही लो सेल्फ एस्टीम से ऑपरेट कर रहे हो, तो आप कभी भी ये काम कर रिम्पी म्यूट कर दो, म्यूट. क्लियर. अब ये तो मैंने आपको बता दिया इनसाइड. अब हम आउटसाइड की बात करते हैं. आउटसाइड में सिंपल सा एक मैट्रिक्स है जिसे हम यूज करते हैं. अगर एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस, ऑन एक्सिस यू हैव लेट अस से markets and here is the customers. So here is existing, new, existing, new. So my current band is, if I had to put it this way, so this is my current band. Existing customers, existing market. मैं दो लोगों से काम करता हूं और इस शहर में काम करता हूं. So what do? I say, okay, let me expand this. So existing market, new customer. Right? ज्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को यूज करें, खरीदें. मेरा प्रोडक्ट 10 शॉप्स पे था तो 80 शॉप्स पे कैसे जाएगा सेम सिटी में. और आई वाज ऑपरेटिंग इन चंडीगढ़, लेट मी स्टार्ट ऑपरेटिंग इन लुधियाना, एंड इट इज अ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टू. सो इट्स वेरी सिंपल. बट ये जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, होता क्या है, जब आप ग्रो करते हो तो ऑपरेशंस बढ़ते हैं. सिंपल सा रूल बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. हिट बुलजाई में, उससे पहले हमारा अपना बुलजाई था, जिस वर्टिकल को मैं अभी ऑपरेशनली लीड कर रहा हूं. हमारे पास देयर वाज अ टाइम 5000 स्टूडेंट्स वर देयर. I'm talking about year 2007. 5000 बच्चे, 7 रूम्स से हम आउटपुट निकालते हैं. 7 रूम्स. शेड्यूलिंग वाज परफेक्ट. कोई लैपटॉप नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं होता था उस टाइम. लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं होते. कम्युनिकेशन वाज ए चैलेंज. कम्युनिकेशंस विद द फैकल्टी वाज ए चैलेंज. बट वी हैड परफेक्टेड ऑपरेशंस. कभी कोई क्लास कैंसिल नहीं हुई, कोई लेट नहीं होनी, कोई चांस ही नहीं है. प्रोसेसर्स बड़े पक्के थे. तो जब हमने एक्सपैंड किया, और मैं आपको ये बता दूं, पहले साल हमारे पास 130 बच्चे थे तो हमने कुछ सीखा. अगले साल जब वो 130 से 300 हुए, हमें सारे प्रोसेसेस चेंज करने पड़ गए. जब वो 300 से 1000 हुए, हमें फिर प्रोसेस चेंज करने पड़ गए. लेकिन जब हमने 1000 के बाद जो प्रोसेस बनाए वो स्केलेबल थे. फिर वो 3000 हो, 5000 हो, मतलब नहीं बनता कुछ इनका. तो क्या है ना कि जब आप ग्रोथ स्टेज में रहोगे तो जैसे ही आप एक्सपैंड करोगे, चीजें बड़ी होंगी, ऑपरेशंस फटेंगे. और ऑपरेशंस फटने से रोकने का एक ही इलाज है, विच इज सॉर्टिंग फ्रॉम इनसाइड. दैट्स आई एम टेलिंग यू. अगर आप, ऐसी टेक्नोलॉजी में होता है, आप कोड लिखते हो, 100 कस्टमर में बड़ा अच्छा चलता है. जैसे ही कस्टमर बड़ा, कोड फट गया, हैंग हो गया, सर्वर डाउन हो गया, क्योंकि आपने आर्किटेक्चरल प्लानिंग पुअर की थी सर्वर की. सर्वर या आपका जो टेक का पीस था वो स्केलेबल ही नहीं था. ऐसे ही ऑपरेशंस है, मैनुअल हो कंप्यूटर बेस्ड हो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता. अल्टीमेटली यू विल बी रिप्ड अपार्ट. सो ग्रोथ, और सबसे बड़ी बात है ग्रोथ के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट का होना. बिकॉज यू आर ए ड्राइवर सीट, यू आर ए ओनर, यू आर ए ड्राइवर सीट. और आप उस ड्राइवर सीट पे बैठ के आप डिसाइड करते हो मुझे गाड़ी 60 पे चलानी है, 100 पे चलानी है, 25 की स्पीड पे चलानी है. नई गाड़ी है, आप बहुत सिक्योरिटी कॉन्शियस हो, बोलते नहीं मैं तो 40 पे चलाऊंगा. भाई, योर चॉइस. somebody says I want to drive at 120, the road is clear, I want to drive fast, your take. Everybody has their own takes in life.
But what is more important is you are the growth catalyst of the organization. The day you stop thinking about growth, the day you'll be dead. It's a matter of time. Things will catch up. आज हम जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में हैं, every 5-10 years either टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, गवर्नमेंट की डिस्ट्रप्शन. देखो, ध्यान रखना, कोई भी बंदा बिजनेस से आउट 3 रीजन से होता है. ध्यान रखना, गोल्डन रूल समझा रहा हूं. आप 3 ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी बिजनेस को मारते हैं. सबसे बड़े फैक्टर, किलर्स. एक है गवर्नमेंट, एक टेक्नोलॉजी, और एक कस्टमर बिहेवियर. ये ध्यान रखना तीनों चीजें. अब मैं आपको समझाता हूँ कस्टमर बिहेवियर का क्या मतलब है. आज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई दिल्ली में कि ये एरिया से पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, फैक्ट्रियां रिलोकेट कर दो. खत्म हो गया, अगले दिन खत्म हो गए. सरकार ने कहा कि भाई इसमें टैक्स डबल हो गया, आप बिजनेस से बाहर हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई आपकी. टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी पीस आया, पुराना खत्म. लोग सीडीज चलाते थे, जिस दिन पेन ड्राइव सस्ती हो गई और इजीली हो गई, सीडी खत्म हो गई. रीइन्वेंट करना पड़ता है. नेटफ्लिक्स रेंटल सीडी चलाते थे किसी टाइम में, अगर वो ओटीटी पे नहीं आते तो ऑर्गेनाइजेशन कब की खत्म हो गई थी. तो आप, टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा किलर है. ठीक है. पेटीएम, ये देखो अभी क्या पंगा पड़ा हुआ है गवर्नमेंट की वजह से, है ना. हवा उड़ी हुई है इस टाइम पेटीएम की, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कंप्लायंस. टेक्नोलॉजी का पीस, ओला उबर से पहले देवर कार रेंटल कंपनीज जो फोन पे चलती थी, फोन पे बुकिंग होती थी. जैसे ओला उबर आए, सारी कंपनियां बंद हो गई. टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म. कस्टमर बिहेवियर, गो बैक 30 years बैक, कोई पिज्जा नहीं खाता था. राइट. पिज्जास एंड बर्गर्स ऑफ द वर्ल्ड आर, they started invading us 25 to 30 years back. I remember when I was doing MBA, the first outlet of KFC was opened. To the best of my knowledge, it was in 1995, 94, right? 30 years back. First outlet, McD था उस टाइम इंडिया में. KFC was the first outlet to open. Bangalore में जब तक आया था, MG Road. So आज पिज्जास बर्गर्स आर कॉमन. आप बोलो मैं तो पराठा ही बनाता था, यार लोग पराठे नहीं खाते. अरे भाई दुनिया चेंज होगी, आप चेंज नहीं होगे तो लोग हो सकता है 10 साल बाद और कम हो जाए. आप रो नहीं सकते. कस्टमर बिहेवियर लगातार चेंज होगा. वो क्या डाल रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं. देयर वाज अ टाइम लोगों के पास कार नहीं होती थी. आज सबके पास कार है, मैक्सिमम लोगों के पास जो टूरिज्म प्लेस में ट्रेवल कर रहे हैं. जब कार नहीं होती तो आपका होटल शहर के बीच में होना चाहिए, बस स्टैंड के पास होना चाहिए. आज आप कहते हो कि फर्क ही नहीं होता, 10 किलोमीटर. इट्स ओके. कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर बिहेव, ये 3 सबसे बड़ी चीजें हैं जो बिजनेस को हमेशा हिट करती हैं. और लास्ट थिंग बिफोर आई टेक अप ओनली द क्वेश्चंस, which is slightly different from what is the topic, is very simple कि आप बिजनेस में जो भी कर रहे हो, बिजनेस डायनेमिक प्रोसेस है. राइट. इट्स लाइक a race and always you have to be in the race. You have to constantly think and evolve. Every 3 to 10 years, depending upon what circumstances, what technology, what product you are in, 3 to 10 years, there is a huge disruption which comes in every market. Except you are selling, sugar or atta. Most of the other things, they have a very short cycle. Today, product life cycles are very small. Product and service life cycles. You have to constantly innovate, change, move. And that is also a part of growth. Coming out with a new curve. And people who make money, remember, is a golden rule.
people who make money are the people who enter any business at the early stage. जो लोग लास्ट स्टेज पे बिजनेस के एंटर होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, तब उनको लस्सी मिलती है हाथ में, मलाई पहले वाले लेके जाते हैं। तो जब भी नए बिजनेस में एंटर होना है, न्यू प्रोडक्ट में एंटर होना है, तो देखो अगर आप मी टू प्रोडक्ट हो, कोई वो नहीं या डिफरेंशिएशन नहीं या कुछ नहीं कमा सकते, क्योंकि आप जिनसे compete कर रहे हो वो कॉस्ट उनकी संक कॉस्ट है, वो पहले ही सब कुछ करके बैठे हो, compete करना बहुत मुश्किल है। You have to constantly evolve and think, because that is also very important when we think of growth. So I leave the forum for the questions, because I can keep on speaking for hours. Yeah. So questions could be related to what I am speaking. Questions could be related to what I am not speaking. It could be anything, whether it's a branding or it's anything else, it's taken care of. Sir, I have some questions. Haji, please. Thank you so much for this wonderful session. First of all, I was a bit disconnected due to my loss. So now I have questions related to company policies. If Sahil ji and you can also help with me. Like I'm newly created company called Data Blair Srijan Technologies Private Limited. So I'm the first time managing director. So now I have questions related to article of association and memorandum of association. So how MOA and AOA help us to build the policies, or should we keep it a standard thing and start exploring the policies inside on an Excel sheet or maybe some PDF files? And Sahil can definitely chip in on this question, but to the best of my knowledge, memorandum of association and memorandum of article is by and large a document which is required by ROC. It is not a guiding document how the business should be done. It is a mere formality. Okay. So don't confuse it with the government requirement and documentation with the policies. When I say policies means कि आपके ऑफिस में जब लोग काम कर रहे हैं वो कैसे काम करेंगे, आप किस तरीके से उनको वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसके अराउंड है वो। साहिल, would you like to add anything here? Yeah. So memorandum is just for the people who are interacting with you. It's for them that what are the internal compliances you have to fill. And articles is your internal management with respect to your financing and approval decisions and all that. If any decisions need to be taken, that's the articles of association. And memorandum is that if somebody is coming to deal with you, they should know what are all things you are dealing with and all. It's more of an informatory thing and all. But as a policy, it should be like what are the policies and processes in your organization. It is more of SOPs in your organization, that what, when and how things will happen. So that is an internal that generally big corporates has to publish on their websites and all something, but not to startups and all anything, no compliances. But yes, if you can make those in your early stage, it can help you in scale up. Because then once you are like sir told in starting, that you cannot be in office full time and all. So where you have to go, how you have to go, you cannot be in office. At that time, these policies and processes will work. How the government is run, there is no employee in government, there is no boss in government. It's run through policies and processes only. So even if an IAS officer comes in and the new IAS officer goes and new comes in and old goes out and all, so at that time these policies have worked out. So can we change these policies later on as well? Yeah. So there is no compulsion, but yes, at whatever early stage you can make these policies is good for you, because that will be convenient for you to leave those aspects of the business and work on the other important aspects. Until the last date you have to work on. If the employee leaves in between, then you again have to make those things work out, explain to him. But if there's a policy document or a process already established, then you just have to give him a training for 2-3 days. है ना, देखो नीड बेस्ड है, प्लीज अंडरस्टैंड। जिंदगी में जब आपको चीज की जरूरत पड़ती है तब आप करते हो, ठीक है ना।
जी जी जी। भाई आप आपकी किचन में 10 डिवाइसेस और 10 अप्लायंसेस हो सकते हैं। जब आपको लगता है मुझे ये अप्लायंस चाहिए तब आप खरीदते हो ना, या पहले ही अप्लायंस खरीदने से पहले पूरी किचन में 25 अप्लायंसेस रख देते हो? ऐसा नहीं होता ना। नहीं होता है। हम right. एक एक करके हम अपनी नीड आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे 4 अप्लायंसेस ले सकता हूँ, चलो मैं ये वाली लेता हूँ सबसे पहले। आप समझ रहे हो? तो ऐसे ही जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, मान लो आपके 6 एम्प्लॉय हो गए, आपस में लड़ाई हो गई, यार ये तो ज्यादा छुट्टियां लेता है, कम हो, तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम आ गई। अब इसका सोल्यूशन पॉलिसी है, लेकिन जब तक वो प्रॉब्लम आई ही नहीं तब तक उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये आपको एनालाइज करना है कि आप किस स्टेज पे आपकी नीड क्या है, और जैसे जैसे नीड जनरेट हो, मैंने आपको क्या बोला कि प्रोसेसेस धीरे धीरे बनेंगे, जहां जहां नीड हो वहां बनाते रहो और लेयर को मॉडिफाई करते रहो। Right, sir. Another question is related to the accountability and generating data you told us. Like, can we, like, I have created a lot of data and I have created a lot of processes in my organization from last 3 years. But now that data is spreaded all across. Some data is in X system, some in Y system, some in Z system. So how we like manage all the systems and processes from a single doorstep? बस नहीं मिलेगा। जो आप बात कर रहे हो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये हम्म आप एक जगह देखो, आप एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके ऑफिस में एक सीआरएम लगा हुआ है, तो जहां पे हम्म पर एक्विजिशन का डेटा है वो सारा एक जगह स्टोर हो जाएगा। हो सकता है समझ में आ गई मुझे कि लीड कहाँ थी, कस्टमर कहाँ था, कॉलिंग किसने की, लीड की वॉल क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, हो गया। अब एचआर का डेटा कहीं और पड़ा है। ये तो आपको पीपीन करना है कि आज मुझे कस्टमर का डेटा देखना है, आज मुझे एचआर का डेटा देखना है, डिसिप्लिन से रिलेटेड डेटा देखना है। अब लेकिन डेटा का फायदा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आप डेटा जनरेट करते रहो, जिस दिन आपने पकड़ना है। देखो एक ध्यान रख लेना कि जब भी आपने किसी को कुछ कहना है, द डेटा शुड स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक। आप बंदे को बोल रहे हो आप लेट आए थे, इफ यू हैव डू नॉट हैव डेटा टू बैकअप, वो बोलेगा सर मैं तो आ ही गया था टाइम पे। Correct. देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी इन योर डिस्कशन। ऑब्जेक्टिविटी विल हैपन व्हेन यू से कि आप आज 9:55 पे आए थे और 9:30 टाइम था। दैट इज ऑब्जेक्टिविटी इन डिस्कशन व्हिच इज शोन बाय दिस पंच मशीन। यू अंडरस्टैंड? मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। मान लो सेल्स वाले हैं, मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूं। अब सेल्स वालों को हम क्या करते हैं, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हम उनको दो चीजों से कंट्रोल कर रहे हैं। हम उनको अभी लीड स्क्वायर पे हैं, हम उनको बोलते हैं तो आपने रोज डेटा फिल करना है कि मान लो मेरा एक पर्सन दिल्ली बैठा है, कि भाई आपने किस क्लाइंट को मिले, कहाँ गए, कितने बजे गए, उसकी एक वॉल है कि लास्ट टाइम उसको कब मिले थे, आज का रिस्पॉन्स क्या आया, तो उसका एक आप डेटा वहां पे फिल कर रहे हो। दूसरा मैंने उसको क्या किया हुआ है, मैंने उसको एक सॉफ्टवेयर मेरा इंस्टॉल्ड है उसके फोन में, जहां से हम उसकी लोकेशन ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है? तो कंपनी है फील्ड सेल्स, उसका हमने डेटा लिया हुआ है। अब जब भी वो सुबह घर से निकलता है वो उसको ऑन कर देता है, और जब वो काम खत्म होता है उसको ऑफ करता है। अब मुझे पता है कि सारा टाइम, और जहां भी जब वो कस्टमर के पास जा रहा है तो वो चेक इन करेगा। ठीक है? मान लो वो घर उसका कहीं था दिल्ली में, वो गुड़गांव गया, तो वहां चेक इन करेगा कि मैं फर्स्ट क्लाइंट के पास चला गया। अब क्या है, मुझे उसकी दिन की अटेंडेंस मार्क करनी है, मुझे महीने के एंड में उसकी सैलरी जनरेट करनी है, मुझे इस महीने के एंड में उसकी रीइंबर्समेंट, ट्रैवल रीइंबर्समेंट। अब ट्रैवल रीइंबर्समेंट इससे कनेक्टेड है फील्ड सेंस से। वो कह रहा है 40 किलोमीटर, फील्ड सेंस दिखा रहा है 12 किलोमीटर। मैं कहता हूँ भाई तेरा डेटा गलत है, या तो फील्ड सेंस खोल के रख। मेरी समस्या नहीं है, फील्ड सेंस से मैं 10% का लीवे दे दूंगा। आप बोलो कि फील्ड सेंस में 5 किलोमीटर है और मैं 20 दे दूंगा, नहीं। अब रोज डेटा मुझे रोज नहीं देखना उसका फील्ड सेंस का डेटा। मैं क्या करूंगा, उसकी रिम्बर्समेंट जब महीने के बाद आएगी रैंडम सैंपलिंग करूंगा, 4 दिन का डेटा उठा लूंगा, 4 मैच हो रहे हैं छोड़ दूंगा, लेकिन डेटा है। अब उसने चीटिंग की और हीरो भी बन रहा है, तो मैं 30 के 30 दिन का डेटा चेक करके पूरी ऑडिट ले लूंगा। 30 के 30 दिन का उठाऊंगा, बेटा ये है तेरा। आप समझ रहे हो? डेटा है, डेटा है, लीड डेवलपमेंट डेटा है।
सेल्स वालों को टिके का करना होता है, बार बार एक ही कस्टमर पे जाके बोलते रहे कि मैं मिलने, फिर मैं बोलूंगा भाई देखो ये ध्यान रख लेना, जब भी डेटा होता है तो उसको दो तरीके से पकड़ते हैं, एक माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे। ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज आप एक कस्टमर पे गए, आपने उसका डेटा देख लिया, उसने बोला सर मैं यहाँ गया था इस कस्टमर के, भैया ये माइक्रो लेवल पे चेकिंग हो गई। मैं 3 महीने बाद बैठूंगा, मैं कहूँ भाई तेरा मैक्सिमम टाइम जा कहाँ रहा है। अब जब मैंने मैक्रो लेवल का डेटा देखा तो मैंने कहा 3 महीने में तूने इस कस्टमर को 16 बार विजिट किया, धंधा तेरा आया नहीं। पर जब मैं आज का डेटा देखूंगा मेरे पास 15 दिन का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो आज जब मैं उसका डेटा देखूंगा माइक्रो लेवल पे देखूंगा। अब बंदा कहता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, होता क्या है, आप बंदे को कुछ नहीं बोलो, बोलो रोज के तू मुझे एक एक्सेल शीट डालनी है तूने मुझे, तो वो लिख देगा मैंने इतने घंटे इसमें लगाए, इतने घंटे इसमें लगाए, है ना। मैं क्या बोलूंगा महीने के एंड में जब मुझे उसको पकड़ना है, मेरा काम कर इस टास्क में तूने टोटल कितने घंटे लगाए महीने में, लेके आ जा। वो जैसे ही लेके आएगा ना उसकी हवा खुद खराब हो जाएगी, क्योंकि अब आप उसको ये करो कि बेटा प्रूव करिए, इतने घंटे का तो काम ही नहीं था। अब वो फंस जाएगा मैक्रो लेवल पे। तो डेटा को जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे माइक्रो लेवल पे ऑडिट करनी है और कहाँ पे मैक्रो लेवल पे करनी है। पर जब डेटा जनरेट हो रहा है ना, आपके पास पीस है कि जब भी किसी को जहां पकड़ना है ना, आप अगर 3 महीने में एक दिन भी बैठ गए ना कि अब मैंने 2 दिन सिर्फ डेटा, जिसे बोलते हैं ना डेटा माइनिंग करके पकड़ने हैं ये 6 बंदे। ऑब्जेक्टिविटी, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिविटी वर्ड यूज किया मैंने। अगर आपका डेटा नहीं है, बुलजाई कमाल है क्या? यू गाइस नो बुलजाई? बोलता रहेगा, क्या फायदा उसका, सारा कैसे एजुकेशन खराब धंधे। कर रहे हैं। मतलब अगर आप मैनेजमेंट में हो और आप डेटा के बिना किसी को बोल रहे हो तो काम नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, आप बेवकूफ हो। मैं तो ऐसे गिनता हूं। तो मतलब ये तो वर्बल आर्गुमेंट है दो लोगों के बीच में, जिसकी कंक्लूजिंग स्टोरी कभी हो ही नहीं सकती। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द डेटा पर्सपेक्टिव? तो एक जगह नहीं मिलना भाई। Thank you so much, sir. I think Coach Anuradha ma'am was asking something. Yeah. I would not take that much of time. Thank you. Thank you for Before your. my question, I would ask Vedansh Singh's question. So, Hideshi is asking that at Hit Bullseye, Hmm. how did you scale up from your first 100 customers to first 1,000 customers? What are the best marketing strategies in edtech industry? Please understand, what I did 20 years back doesn't work today. What I did 5 years back doesn't work today. What works today is works today. In 25 years, I have seen 10 different things which worked. For example, there was a time कि लोग एग्जीबिशन में आते थे, आज इंफॉर्मेशन गैप था, आज आईटी में आपके पास सब कुछ है। Right. तो जो एक ही चीज मैंने आपको, आई थिंक वो पहले मैंने आंसर दिया है कि सबसे पहले तो यू हैव टू बी थिंकर। और कई बार ना आंसर्स बड़े इजी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। जब आप किसी चीज को बार बार सोचोगे ना दिमाग से, तो आपको एक ऐसा बड़ा इजी सा सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आप कहोगे वाओ। पर वो सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको सोचना बहुत पड़ता है। आज की एडटेक की दुनिया बड़ी डिफरेंट है, और मैं ये कहना चाहूंगा अनफॉर्चुनेट पार्ट है टुडे, B2C customer acquisition is the most difficult work. I'm telling you, B2B is much easy because we have verticals where we have a B2B clients, we have verticals where we have B2C, physical as well as online. So I have seen taste of all the words from South Indian to Mexican, right? अब B2C ऑनलाइन टफ क्यों है? एक तो मार्केट बड़े प्लेयर्स ने खराब कर दी, ट्रस्ट का फैक्टर नहीं है, बच्चा फ्रीवलेस हो गया है, टिकट प्राइस कस्टमर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मर्सिडीज है या मारुति है, वो तो कहता है 4 टायर हैं ठीक है। वो मारुति को मर्सिडीज से जब कंपेयर करता है शैलो सर्च पे, तो जस्ट आपको जो बंदा यही आके आर्गुमेंट दे दे कि सर 4 टायर तो लगे हुए दोनों में, चलती तो है, अब आप उसको क्या कन्विंस करोगे कि मर्सिडीज और मारुति में क्या फर्क है? कैसे आंसर दोगे? बहुत चैलेंज है। सो
आज की दुनिया बड़ी डिफरेंट है। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको स्पेसिफिक आंसर दे दूंगा। आप सोशल मीडिया पूछो, आप एसईओ पूछो, आप जो मर्जी पूछो, बट इफ यू कैन गिव मी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आई कैन गिव यू ऑब्जेक्टिव आंसर ऑन दैट। Sir, I have a question. I'm consulting a few companies, and one of the companies, there are process changes. So you said that process, it should be process oriented, not people oriented. So that's what I always suggest to all my companies. Now there are few changes that are made, like some policies changes, timing changes, and all and all and all. So a lot of policies that get changed. So I wanted to ask you, what do you think? How much of it has to be democratic, or whether the first layer of leaders should be involved while making such changes, the changes that are impacting him? I think so. Let me see. The topic is very vast. Change. Let us first understand the psychology of a change. All of us want to be the way we are, the way we work, the way we operate, the way we live, the way we eat, the way we dress. True. आपके मम्मी के या घर में अगर किचन में कोई ये कहते ना कि ये चीनी ना इस शेल्फ से उठा के उस शेल्फ पे रख दो, आप कहोगे यही कंफर्टेबल है। राइट। खत्म बात है, मुझे नहीं चाहिए। आप बोलो ये ड्रेसिंग टेबल या ये टेबल का मुंह ना इधर कर दो, 90 डिग्री कर दो, घर में उसी पे बवाल हो जाता है। ये ऐसे सुंदर नहीं दिख रहा, ऐसा कन्वीनियंट है। बिकॉज प्रॉब्लम, हम लोग चेंज में एक शब्द हम यूज करते हैं, रेजिस्टेंस। सो रिमेंबर द गोल्डन रूल, एनी चेंज हैज ए नेचुरल रेजिस्टेंस। इट्स लाइक फ्रिक्शन exists universally. Now when there is a resistance, so resistance has to overcome. जैसे फिजिक्स में बोलते हैं ना कि धक्का उतने जोर से मारो कि जितने में वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दे। फ्रिक्शन को क्रॉस करेगा तभी तो चीज मूव होगी, है ना। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो नेचुरल है, तो ये तो होना ही है, ये सोचो ही मत नहीं होगा, हर जगह होगा। अब जब आप बड़ा चेंज कर रहे हो तो बड़ा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को आपने हैंडल करना है तो उसकी 2 या 3 स्टेजेस होती हैं। पहली चीज तो हम इसे बोलते हैं कि आपने बंदे को, जब मैं शब्द यूज कर रहा हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, प्री कंडीशनिंग करनी है। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। प्री कंडीशनिंग क्या होती है? देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, यूजुअली मान लो किसी को कैंसर हो गया, उसकी कैंसर से डेथ होती है। मैं आपको 2 सिचुएशन देता हूं और आप भी रिएक्ट ऐसे ही करोगे। एक बंदे को कैंसर था, वो मर गया, और एक बंदा एक्सीडेंट में मर गया। किसके घर में ज्यादा वो हल्ला मचेगा? जो एक्सीडेंट में मर गया। मरा तो मरा ही है भाई, लॉस ऑफ पर्सन इज ए लॉस ऑफ लाइफ, बट दे आर नॉट Right. ट्रीटेड इक्वली। एवरीबॉडीज माइंड हैज बीन प्री कंडीशंस कि मरने वाला है, मरने वाला है, मरने वाला है, एक दिन मर जाएगा। प्री कंडीशनिंग हैज रिड्यूस्ड द इम्पैक्ट एंड द आफ्टर इफेक्ट। रिमेंबर दिस। सो एनीथिंग बिग हैज टू देयर प्री कंडीशनिंग शुरू कर दो। हम कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे करेंगे, ग्रेप वाइन से डाल दो इधर से, तो लोग अच्छा कुछ हो रहा है, होने वाला है यार। तो क्या है, प्री कंडीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप एक झटके में अनवील करते हो ना, जब एक झटके में अनवील करते हो तो ये बहुत ही इम्पैक्ट रेजिस्टेंस आता है। तो इसलिए प्यार से धीरे धीरे प्री कंडीशनिंग करके, प्री कंडीशनिंग के मल्टीपल चीजें हैं। इन्वॉल्विंग लीडर्स तो वो पहले ही बता देंगे, यार ऐसी बात डिस्कस हुई थी मीटिंग में, मैंने ऐसा बोला ऐसा बोला, तो आधी चीजें तो आप उनके कान से निकाल दी। और ये ध्यान रख लेना, ऑफिसेस डेमोक्रेसी से नहीं चलते, एडमिनिस्ट्रेशन आयरन हैंड से चलता है। अगर आपको किसी को लगता है कि ऑफिस डेमोक्रेसी से चलता है, तो ऑफिस का टाइम ही नहीं फिक्स कर सकते आप। कोई कहेगा सवेरे ले आओ, कोई कहेगा शाम को ले आओ। आपने बोला कि अगर ये आप मेल डाल दो ना अभी ऑफिस में कि ऑफिस कितने से कितने बजे टाइमिंग होनी चाहिए, कोई कहेगा 7 बजे कर लो ताकि हम 3 बजे फ्री हो जाए, कोई कहेगा 12 बजे ऑफिस शुरू करो, फिर आप कंसेंसस में आओगे,
What nonsense? You decide and say you have to comply by it. So democracy is good some places, but it is bad in a lot of places where administrative decisions are to be made. Yes, when you are taking those administrative decisions, talk to stakeholders, take their opinion. But it cannot be a democratic process. It could be a consultative process. Remember this. Consultative process is something different and democratic is something different. So democracy kills. And when you talk about resistance, one more line and finish. When the resistance will change to rebellion is the problem. ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है चेंज मैनेजमेंट में, रेजिस्टेंस और रिबेलियन. रिबेलियन है लोग खड़े हो गए, नहीं करेंगे कल से, तुम जाओ जो करना है करो. रिबेलियन की स्टेज इसीलिए आई क्योंकि आपने रेजिस्टेंस को तरीके से समझाया नहीं. मुझे याद है जब हमने 2000 वी वर अहेड ऑफ टाइम. मैंने 2011 में अपनी टीम को बोला 12 में कि हमें वीडियोस बनाने हैं. लोग कहते सर हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम तो क्लास में पढ़ाते हैं, ये हमारे बस का नहीं है कैमरा हैंडल करना. फिर मैंने क्या किया, मुझे याद है हमारी एक फ्रेंड थी, शी वाज हेडिंग द रेडियो स्टेशन. उससे पहले 2 दिन की वर्कशॉप लगाई हाउ टू फेस द कैमरा. तो मेंटली उनको प्रिपेयर किया, एक वार्डरोब बनवाया पूरा, उनको ड्रेस ही दे दी प्रॉपर कोट डाल के. मेरे पास वो छोटी सी शर्ट थी जो यहाँ तक ही होती है, वो एंकर डालते हैं ना, आधी शर्ट बिप जैसी होती है जो बच्चे के. ड्रामा किया है ना, कि तुम्हें ये दे दिया, तुम्हें कैमरा दिया, फिर इंसेंटिवाइज कर दिया कि जो वीडियो इतने से ज्यादा बनाएगा उसको एडिशनल पैसे मिलेंगे. सो ट्रेनिंग दी, फियर दूर किया. उनको लगता था वो सुंदर नहीं दिखेंगे, सुंदर दिखाने की कोशिश की. उनको लगता था कि इससे फायदा क्या होगा, चलो तुम्हें पैसे भी दे देते हैं. तो हर तरफ से रेजिस्टेंस को कम किया. राइट. ये नॉर्म है. अगर मैं पहले दिन बोलता नहीं कल से सब लोग वीडियो बनाएंगे, रिबेलियन हो जाता. यू गॉट इट? Yes. Thank you so much. Dr. Ritu, you have a question, so please go ahead. Yeah, please. Yeah, good day, sir. It was wonderful listening to you. And I would say that every session we attend, we learn something. So I'm into the initial stages. I can say I'm in the first 2 years of my startup. Okay. As you said, that delegating the powers, very right. Because if we take all the load, it is not possible. We'll be lost in that thing only, and actual work is lost somewhere else. But at the initial stage, what do you advise, sir? It is my learning stage. Should I keep the things with me only? Let me be totally be 100% knowing about how to move with my startup, and then delegate the powers, or from beginning itself I should start delegating the powers? आंसर इसमें ये लाई करता है कि आपका डे कितना फिल्ड है आपके काम से. एक स्टेज आती है, देखिए हम ध्यान से परिवार समझना, हम एज ए फाउंडर, देखो आप 2 या 3 तरीके के काम करते हो दिन में. एक काम है ऑपरेशनल, एक है आपका थीमेटिक, एक है आपका विजनरी. अगर आपका ये हेल्दी है तो ठीक है. अगर ऑपरेशंस ही आपका ये सारा ले गया टाइम, इसके और इसके लिए टाइम कहाँ बचा? तो अगर नहीं ले रहा, आपको जरूरत ही नहीं है टीम की. अगर आपको ये लग रहा है कि, अब बात समझो, अगर बच्चे बढ़ गए, मैं 6 घंटे की जगह 4 घंटे की जगह 8 घंटे क्लासरूम में चला जाता, Yes. मैं क्लासरूम के अंदर वो 4 क्लासेस लेट हो गई, उससे क्या फायदा हुआ? आज मैं तो अपनी टीम को हंसता हूँ कि भैया मैं तो कोई काम ही नहीं करता, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ लोगों से काम निकलवाना है. मैं तो मीटिंग करता हूँ सुबह से शाम तक और ज्ञान बांटता हूँ. मेरा काम ही मेंटरशिप. So I'm a consultant in the organization. If I become, I think last I have typed 10 lines, I don't know when. Trust me on this. I write 2-line mails. और मुझे अगर 10 लाइन की मेल लिखनी होती है, मैं किसी को बोलता हूँ भाई लिख के लिया, मैं कॉपी कट कर डाल दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है वे लाइब्रेरी का.
So the Right. point is, मुझे नहीं पता ना आप किस स्टेज में, लेकिन मैं आपको इतनी बात समझा रहा हूँ कि क्योंकि आपका जो ग्रोथ इंजन है वो यहाँ लाई करता है, यहाँ Hmm. ये एग्जीक्यूशन है, ऑपरेशंस। सुबह उठे, ये किया, वो किया। आप ऑपरेशंस को तो थीमेटिक्स आप किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते, Exactly. लेकिन ऑपरेशंस तो कर सकते हो ना। तो ऑपरेशंस जहां जरूरत पड़े, देखो मैं आपको एक सिंपल सा मैं आपको ना, हम 3 पार्टनर्स हैं। हमारा एक कन्वर्सेशन बताता हूँ जो ईयर 2000 में हुआ, 99 में हुआ। ये 99 का एग्जैक्ट कन्वर्सेशन है हम 3 पार्टनर्स के बीच का। That is early stage, first year of operations. I remember my partner said, मैं भी मैथ पढ़ाने लग जाता हूँ। उस टाइम मैं मैथ पढ़ा रहा था और हमने बहुत और भी काम किए, वी हैव एक्सपोजर ऑफ मल्टीपल थिंग। रिटेल में हमने बहुत काम किया है। मैंने एमएक्स के कार्ड भी बेचे हुए हैं, मैंने इंटरनेट भी बेचा हुआ है, मैंने सीआरएम भी बेचे हुए हैं, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है जिंदगी में। ठीक है, वी हैव ग्रोन। अब मैंने कहा यार देख, अपने पार्टनर को, दीपक को, मैंने कहा देख यार, ऐसा है कि तू टीचर बन जा, कोई गम नहीं है, लेकिन तू किसको रिप्लेस कर रहा है? एक टीचर को जिसकी सैलरी 25,000 रुपए, क्या हमारी औकात 25,000 की है? Right. अगर तो मेरी औकात 25,000 की है तो फिर भाई आ जाओ, टीचर बनने थे तीनों। 75,000 हमने अपनी जिंदगी 25,000 से। आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है ना, ये तो आपको समझना है। एज ए एंटरप्रेन्योर आप तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो। अगर आप 25,000 के बंदे का काम कर रहे हो, आप सोचो कि आप एक 5 लाख का बंदा हायर करके अगर उससे 15,000 का काम करवा रहे हो, तो हमारे से बड़ा बेवकूफ कौन है? आप समझ रहे हो? आप इनवैल्यूएबल हो। अगर आप वो काम कर रहे हो जो कोई और कर सकता है, तो आप वो काम कर सकते हो जो कोई और नहीं कर रहा। यही सारी समझने की बात है। आज मेरा वो पार्टनर, he runs Ambala both schools, he runs 3 franchises, he develops books. Had he only confined, हम तीनों ने डिसाइड किया होता, मैं तीसरे साल मैं टीचिंग से बाहर आ गया और हम हिट बुलजाई में। और बुलजाई में क्यों गुर पाए? कि मैंने सारी ऑपरेशनल पोजीशंस छोड़ दी 3 साल के अंदर, क्योंकि ये तो मैं हायर करके करवा सकता हूँ, ऊपर वाली चीजें नहीं हायर करके करवा सकते। और ये विशेष सर्कल है। आप ऑपरेशन छोड़ोगे नहीं, आपको लगे मैं पैसे बचा रहा हूं, आप अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है। मैं तो आज ये क्वेश्चन, मेरे पास कितने लोग आते हैं सर, 25 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं, ये बिजनेस आइडिया है, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अपने दिन को ऐसे गिनता हूं कि अगर किसी वेले काम में मेरा 3 घंटे खराब हो गए, मतलब मेरा दिन वेस्ट हो गया भाई, दैट वाज नॉट माय वर्थ। मुझे तो आज घंटों की आरओआई नहीं मिली। मैं तो ऐसे ऑब्जेक्टिवली देखता हूं अपने दिन को कि आज मैं एक इम्पैक्ट फैक्टर यूज कर सकता। अगर मैंने 2 टुच्चे काम किए तो कई बार तकलीफ भी होती है ना? तकलीफ तो होती है। कई बार जब मेरा घर बन रहा था, मेरी वाइफ से लड़ाई हो जाती थी। वो कहती थी ये काम कर लो, मैंने कहा ये काम मैं ड्राइवर से करवा दूंगा, किसी और से करवा दूंगा। मैंने कहा अगर मैंने 3 घंटे ड्राइव ही करना है तो मेरी बात तो ड्राइवर की हो गई। 3 घंटे मैं क्या कर रहा हूँ? ड्राइवर की सैलरी 10,000 रुपए है, मैं उसको थोड़ी रिप्लेस करूंगा बैठ के यहाँ। मैं इससे अच्छा 10,000 खर्च दूंगा। आई हैप्पी डूइंग दैट, अनलेस कोई इमोशनल एंगल ना हो उसमें। But you have to be very objective in life. The Yes, thing. So I think that answers your question. I think yes. Right. Thank you, sir. Yeah. Any other questions anybody has? Are there any more questions, or we are done? Any questions? So Hirdesh ji, such a wonderful session, and it was like crystal clear. We could understand step by step how we have to be process oriented, how we have to make our employees more accountable. We have to coach them. So I think everything was so systematic that we've got what we had not even thought of. So much more than that. Thank you. Thank you for giving your time. And we would certainly, I think all the audience would want more sessions from you. I've already got one thank you from Vedansh. So thank you so much,
we would like to see you on the platform more often. Like we Thank you. have these every Wednesday at 5 o'clock. Thank you for inviting me. So- Thank you, Sahil. Thank you, Radha. So much, sir. Welcome. Thank you so much for handling all the queries so beautifully and explaining things on paper. Yes, Kamal. Amazing. Thank you so much. So I'm a teacher. I'll tell you how I do my meetings. Yeah, I sir. do not do any minutes of meeting. Whatever I discuss, I draw, write, and immediately after a meeting, this document as a PDF is sent to my all meetings. That's it. Wow. Wonderful. Then and there. Wonderful. And And we need to learn that art also from today. Use of Interesting. technology classroom. I am using board till now. And so I'm using board and writing on board, and then we discuss. But I think writing on paper and then Because- sending a PDF is much Because more better. I say कि वो 1 महीने वाली मीटिंग के ये नोट्स थे, 15 दिन वाली ये के, 7 दिन वाली के थे। सबसे पहले बंदा आता है, मैं उसकी पुरानी मीटिंग्स खोलता हूँ, उसी डॉक्यूमेंट पे ऐड हो जाता है। सो इट वर्क्स वंडर। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोई मुकर नहीं सकता ना, नहीं तो होता क्या, मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन, आपके पास तो टाइम नहीं है लिखने का, और फिर वो गड़बड़ हो जाती है। पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दैट कम्युनिकेशन गैप। That's my standard operating procedure in my office, and I have been doing this for 2 years now. Excellent results I have received. wow. Thank you. Thank you. Wonderful. Thank you, sir. So Thank you, sir. much.